Good, good, good morning, Good Ajay morning, bhai. sir. Good morning. Good Very morning. good morning. Good morning, Good everyone. morning, good morning, good morning, Good good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Sanjay bhai. Good morning. Good Chin morning. bhai, Good good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning, morning, everyone. Karuna Ben. Good morning, Varsha Ben. Very good morning. Good morning, Ballar sir. Good morning. Good morning, Ajay sir. Roshan, good morning. Satish. Yes, good morning. Good morning. Good Good morning, morning. Naina Ben. Good morning, all sir and all participants. Good Good morning. morning, everyone. Good morning, Sanjay sir. Wow. It's nice morning. First I muted to all. Wait a minute. Okay. આપણે બધા સ્ટુડન્ટ કહેવાય ને કરુણા. Yes, all right. Welcome all of you and good morning. So let's start. I am inviting to Rakesh sir. Welcome Rakesh sir. Morning. Over to Thank you. you, Ajay sir. Very good morning. Yes, can we have the PPT, please? Actually, by the time Ajay sir share the PPT, I want to request all of you that please focus on vocabulary also. In yesterday's feedback call, we were discussing on the same topic. Like participants are not focusing on the spellings, on the words, on the vocabulary. So it is very important to improve your vocabulary. So how many of you are doing the same, like practicing 5 words daily or 10 words daily, 10 new words, 5 new words daily? So how many of you are doing this on regular basis? Can anyone share? You must Yes, Raj. have. Yes, Raj. Vraj's hand is already raised. Anyone else except Vraj? So, okay, no problem. But you all already have that 1000 list of 1000 words, right? Yes, Mantra. Yes, Mantra Sakarya. So you already Mantra. have that list of 1000 words. So please practicing those words. So please start practicing those words, because otherwise you will not have vocabulary. You will, आप उसी words में घूमते रहेंगे जो आपको पता है. You will not jump in the new world. आप नए दुनिया में नहीं जा पाओगे. Right? So today I request all of you that now it's time to focus on vocabulary also. Now your work will be like more. आपका काम जो है वो अभी ज्यादा बढ़ने वाला है, because you are now you have more knowledge, information, everything. आपके पास अभी सब कुछ ज्यादा है. आपने और today is the 60th day, मतलब आप आज जो है हमारा 60वां दिन है. So now it's time. कल भी बताया था, yesterday we discussed the same, right? If you are facing any difficulty, आपको कोई तकलीफ है, you can call any of us. उनमें से किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं. But please start practicing. Okay, next slide. Next. Okay. Yes, Krisha. Share the intention. 269. One minute.
to I unmute, 16. no problem. Yeah, okay, thank you. Okay, sir. To empower every individual by teaching him or English. Okay, I हमें need सब explanation. What is the meaning of the intention? हमें सबको इंग्लिश सिखाकर एम्पावर करना है. In English, explain in English. How will we empower? What will be the impact in their lives if they teach English? If they learn English, sorry. We powerful our English and empower all participants. Okay. What difference will it make if you learn English very well? अगर आप ठीक से इंग्लिश सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में क्या फर्क आएगा? I will speak English. Okay, it's correct that you will speak English, but what will be the difference? अलग क्या होगा अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे? This question is for everyone. Think. सबके लिए है. सोचिए कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख गए तो आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा? This is very important. Yes, Prajakta. Okay, no problem. Yes, Satish. Right now, I think if someone speak English in front of us, then we believe that his personality also some level higher. Okay. It is our belief, and if he or she speak well English, then he can or he or she can understand everything or whatever going on around. And nowadays, I think English is most important. Okay, so Satish wants to say that whenever someone speaks English, people think that the person is knowledgeable, the person has some status. So if everyone, or if every member of English club, or if Satish learns how to speak English, he will have the same confidence, he will have the same status, or he will have the same impression. So he wants to learn English. Okay, great. So everyone has his or her own reason. सबके पास अपने खुद के reasons हैं. So please focus. आप सोचिए कि why do you want to learn English? Okay, next slide. Okay, so today's topic is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. अब तक हमने सीखा है past and present. So first of all, like yesterday, चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं future continuous tense पर. Future continuous tense. What is future continuous tense? Who will share? Future continuous tense. Yes, Prajakta. Sir, in future, some action will continuously going on for few period or few time. वो आप जो बोले ना, वो future perfect continuous tense का definition बोल. I'm just asking future continuous tense. Okay, in future continuous tense, action will going on. Okay. मीन्स मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, सब ध्यान रखिएगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब अगर मैं कल 6 बजे की, कल 5 बजे की, अगले साल कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई मोमेंट पर कुछ चल रहा होगा, उसको दिखाने के लिए मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगा. प्राजक्ता, डू यू हैव एनी एग्जांपल्स? Yes, sir. Yes. Tomorrow I will go. Sir, just a minute. Tomorrow I will be continuing my English speaking practice from 3 to 4 p.m. मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ. 2 चीज इसमें होनी जरूरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. एक तो पॉइंट होना जरूरी है और वो एक्टिविटी शुरू होना जरूरी है. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कल 3 बजे मैं एक बुक पढ़ रहा हूँगा, मतलब मेरी बुक पढ़ने की क्रिया कल 3 बजे शुरू होगी.
तो आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 3 o'clock टुमारो। ओके, ये यहाँ पे मैंने टाइम का रेफरेंस दिया। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई कल तुम जब आओगे तब मैं बुक पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल बी रीडिंग अ बुक व्हेन यू कम। जब तुम आओगे तब मेरी बुक पढ़ने की क्रिया शुरू होगी। ओके, ऐसे और एग्जांपल कोई दे सकता है? एनीवन? यस सतीश, प्लीज फोकस, यहाँ ध्यान रखिएगा। स्क्रीन को छोड़ दीजिए, उसका सेटिंग करने दीजिए, आप सब मुझे सुनिए। यस सतीश। Satish, please unmute yourself first. Yes. Sir, the voice is not allowing participant to unmute. Okay. Okay. I will be learning English tomorrow at this time. Wow, great. I will be learning English tomorrow at this time. मतलब इस टाइम पर कल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा। ओके, ग्रेट। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कल किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हो रहा होगा। कल मतलब फ्यूचर में, कल, अगले हफ्ते, अगले रविवार को, अगले सोमवार को। जो चीज पास्ट में हम इमेजिन कर रहे थे वो मतलब हो चुकी है, वो फ्यूचर में इमेजिन करनी है। ओके, यस। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? कौन बताएगा? फ्यूचर परफेक्ट कौन बताएगा? यस देवचंद भाई, देवचंद भाई को अनम्यूट करिए। यस, अब बोलिए। I have singing a song yesterday 3 o'clock. Yesterday नहीं, tomorrow। Tomorrow singing a song. वेरी गुड। लेकिन आपको फ्यूचर परफेक्ट का बोलना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने जो बोला ना वो फ्यूचर कंटिन्यूअस था। ओके, मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है, कौन बताएगा? नो प्रॉब्लम, त्रुषा यू कैन ट्राई। 68 नंबर, रोल नंबर, गोंडलिया त्रुषा। सब यहाँ पे फोकस रखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। To complete action, to show to complete action in future. ओके, मैं बता देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब देखो, पहले प्रेजेंट परफेक्ट पे आता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? एक्टिविटी खत्म हो गई है, क्रिया खत्म हो गई है, लेकिन उसकी असर शुरू है। प्रेजेंट पर उसकी असर है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, गेस्ट आ चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं। ये परफेक्ट टेंस है। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिविटी पूरी हो गई है, असर शुरू है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब सेम पास्ट परफेक्ट, कोई पॉइंट पर कोई एक्टिविटी खत्म हो गई होगी लेकिन उसकी असर शुरू होगी। लेकिन मैंने जैसे बताया, उसको दिखाने के लिए रेफरेंस जरूरी है कि वो कब होगा। उसको दिखाने के लिए कैसे, कल भी बताया था आपको कि तुम जब आओगे तब मैंने खाना खा लिया होगा, राइट? सॉरी, पास्ट की बात कर रहा हूं। तुम जब आए तब मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था। व्हेन यू केम आई हैड ऑलरेडी टेकन माय डिनर। स्क्रीन पर नहीं देखना है, सिर्फ सुनना है। यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है कि तुम जब आए तब ये क्रिया खत्म हो चुकी थी। उसमें हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कल आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला। अब मैं वही चीज फ्यूचर में डाल रहा हूं कि कुछ होगा तब कुछ हो चुका होगा। जैसे कि तुम जब आओगे तब मैंने होमवर्क कर लिया होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क व्हेन यू कम। तुम जब आओगे तब मैंने होमवर्क कर लिया होगा। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सेम जो हम 3 दिन से सीख रहे हैं, दोनों को क्लब करना है। फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होगी जो कोई पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम बात करें, मान लो 3 बजे, 4 बजे, या फिर हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उस घटना का होते वक्त
कोई एक्टिविटी जो है वो पिछले कई समय से शुरू होगी। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसको वापस देता हूँ। पास्ट को दिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप एक कमरे को इमेजिन करिए, सब लोग, पास्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक रूम है, वहां 3 या 4 बजे गुरुवार का दिन है और 3-4 लोग बैठे बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैंने देखो ना 3 महीने से मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, 2-3 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट किया है, या ऐसी। तो उसी घटना को हम अगर आज एक्सप्लेन करें तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि व्हेन वी मेट, जब हम मिले, पास्ट की बात करो 1 महीने पहले, I had been practicing या फिर I had been started फिर से बता रहा हूँ, पास्ट का जो 1 महीने पहले की घटना है उसमें देखिए कंफ्यूजन है, मैं भी खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि फोकस करने की कितनी जरूरत है। पास्ट में when we met, जब हम मिले, तो I had, मैंने क्या शुरू कर दिया था, I had been practicing, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। कितने समय से प्रैक्टिस कर रहा था? For 3 months, had been practicing for 3 months। क्या प्रैक्टिसिंग कर रहा था? कि इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरी इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस जो है वो 3 महीने से शुरू थी। मेरी वेट लॉस की प्रैक्टिस है वो 3 महीने से शुरू थी जब हम मिले तब। अब उसी घटना को आप फ्यूचर में डाल दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में मतलब एक सोचिए कि आप 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं, अगले महीने जब आप मिलने वाले हैं उसकी बात करें तो उसमें वही सेम, जब हम मिलेंगे, when we will meet या फिर when we meet, I will have been practicing, I will have been trying, I will have been learning, I will have been running। फ्यूचर में कोई पॉइंट पर मेरी कोई एक्टिविटी 3 महीने से, 2 महीने से, 2 साल से, 3 साल से शुरू होगी, इसको दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बार बार कह रहा हूँ परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट में जाए या फ्यूचर में जाए, आपको रेफरेंस देना जरूरी है कि जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो कब हो रही होगी। उस रेफरेंस को कैसे दिया जाएगा? या तो आप टाइम में दे सकते हो। टाइम में कैसे? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। या फिर दूसरी एक्टिविटी को रेफरेंस में लेकर दे सकते हो। वो कैसे? कि जब तुम आओगे, जब हम मिलेंगे, जब शाम होगी, राइट, जब अर्थक्वेक होगा, जब ट्यूशन कंप्लीट होगा, लाइक दैट, तब कुछ हो रहा होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अब पहली चीज, ये कब यूज होगा, कैसे यूज, इसमें किसी को डाउट है? ओके, फिर से एक बार रिपीट। फ्यूचर में सिंपल तरीके से सुन लीजिए। फ्यूचर में कोई एक स्पेसिफिक टाइम पर, मान लीजिए कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, 2 साल बाद, जब भी, लेकिन फ्यूचर में, स्क्रीन पर नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। फ्यूचर में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक एक्टिविटी होगी जो पिछले काफी टाइम से चल रही होगी। कोई एक एक्टिविटी होगी जो पिछले काफी टाइम से चल रही होगी। बस उसी को दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि जब हम मिलेंगे तब तुम 3 दिन से गाना गा रहे होंगे, मतलब तुम्हारा गाने की क्रिया 3 दिन से शुरू होगी और खत्म नहीं होगी, उस टाइम पे भी शुरू होगी जब हम मिलेंगे तब, राइट। दूसरा, जब, या फिर टाइम वाला ले लेते, ये मैंने एक्टिविटी वाला ले, अब टाइम ले लेते। कल शाम को 3 बजे या कल शाम 4 बजे तुम 2 घंटे से होमवर्क कर रहे होंगे, मतलब जब कल 5 बजेंगे या 4 बजेंगे, 3 बजेंगे, तब तुम्हारी होमवर्क करने की क्रिया पिछले 2 घंटे से शुरू होगी। उस वक्त भी शुरू होगी, मतलब वो खत्म नहीं होगी,
लेकिन उसका जो पीरियड है वो 2 घंटे का होगा और 2 घंटे से आगे भी चल सकता है। इस तरीके से इसको इंग्लिश में अब देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लीजिए, बहुत इजी है। शेल विल, इसमें फ्यूचर में एक दिक्कत ये होती है कि शेल विल एक एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी कोई अलग नहीं है। शेल विल हैव बीन आईएनजी। नॉट लगाना है तो शेल के पीछे लगाना है, आगे पीछे करना है तो शेल को आगे पीछे करना है, इंट्रोगेटिव में या डब्ल्यू, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके नेक्स्ट। ओके, अब देखिए इसमें रेफरेंस, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखते जाइए। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3 years। रेफरेंस क्या है? नवंबर। नवंबर में कुछ होगा, क्या होगा? नेक्स्ट नवंबर, क्या अभी की नहीं, जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है तो नवंबर में क्या होगा? मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं किसी कंपनी में, तो आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3 years। परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस, मतलब सिंस 4 आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी है। तो जब नवंबर आएगा तब मेरे कितने महीने कंप्लीट हो गए होंगे, कितने साल? 3 साल। तो नवंबर में मैं मेरी कंपनी में 3 साल से काम कर रहा होऊंगा। ये इसका शुद्ध हिंदी है, ठीक है। गुजराती में कहिए तो नवंबर में मैं 3 વર્ષથી काम કરી રહ્યો હોઈશ એ कंपनी में, लाइक दैट। फर्स्ट एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है? या फिर मुझे ऐसे पार्टिसिपेंट्स बताइए जिसको कुछ नहीं समझ में आया कि भाई सब बाउंस गया। ओके, थैंक यू। तो सेकंड सेंटेंस लेते हैं, एट 5 o'clock। अब इमेजिनेशन में जाएंगे, जो भी सेंटेंस है उसको दिमाग में इमेजिन करेंगे और सारा इमेजिनेशन फ्यूचर में करना है। इमेजिन ऑलवेज फ्यूचर में ही होता है। ओके सतीश, थैंक यू। एट 5 o'clock, आपको 5 बजे की कल्पना करनी है। वो आज शाम का 5 बजे हो सकता है या कल का भी 5 बजे, बट फ्यूचर का होना चाहिए। तो क्या होगा? आई विल हैव बीन वेटिंग, मैं राह देख रहा होऊंगा। कितने समय से? फॉर 30 minutes। इसका मतलब यह है कि मैंने 4:30 बजे से वेट करना शुरू कर दिया होगा और जब 5 बजेंगे तब 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। तो एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। मैं 30 मिनट से राह देख रहा हूँ। आपको 2 रेफरेंस मतलब याद रखने, एक 4:30 बजे, एक 5 बजे। 4:30 बजे उसके राह देखने की क्रिया शुरू हो गई थी फ्यूचर में, और 5 बजे जो है वो 30 मिनट्स उसके कंप्लीट। तो 5 बजे ये सेंटेंस आदमी बोल सकता है। आप देखिए कि आप लाइफ में ये कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, ऐसा हम देखते हैं अभी प्रैक्टिस में। आपसे ही लेंगे सेंटेंस। ओके, अब थर्ड वन। 2 सेंटेंस में कोई किसी को डाउट, क्वेश्चन, सजेशन, कुछ भी? ओके, थैंक यू। व्हेन आई टर्न 30, मतलब जब मैं 30 साल का होऊंगा तब। आई टर्न 30 मतलब एज के लिए होता है कि जब आप 30 साल के हो जाएंगे। तो मैं जब 30 साल का हो जाऊंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 years। मतलब उस वक्त पे मेरा पियानो बजाने का एक्सपीरियंस कितना हो गया होगा? 21 साल का। इसका मतलब यह है कि मैंने कौन से ईयर से पियानो बजाना शुरू किया होगा। चैट से लिखिए, चैट में, तो मुझे समझ में आएगा कि आप समझ गए। वेरी गुड आरसी, आपको समझ में आ गया? यस। और कौन बताएगा? नो जोत। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं 30 साल का होऊंगा तब मैं 21 साल से पियानो बजा रहा होऊंगा। इसका मतलब मैं 9 साल का रहूंगा तब मैंने शुरू कर दिया होगा। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। समझ में आया आपको? ओके। फोर्थ सेंटेंस, बाय 2001 मतलब 2001 से पहले, 2001 तक। हम 2021 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बाय 2022 2022 से पहले या 2022 तक।
I will have been living in London for 16 years. मतलब मेरे लंदन में रहने का जो टाइम है वो 16 साल का हो गया होगा. ऐसा नहीं है खत्म हो गया, चालू ही है, लेकिन 16 साल 2001 में खत्म हो जाएंगे, इसका ये कहने का. ओके, व्हेन आई फिनिश दिस कोर्स, मैं जब ये कोर्स कंप्लीट करूंगा, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 years. मतलब मैं 20 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँगा जब ये कंप्लीट करूंगा तब कोर्स. ओके, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years. मतलब अगले साल मेरा यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस कितना होगा, कितना कंटिन्यूटी होगा, 4 साल का. मतलब इसका मतलब यह है कि अभी 3 साल हुए हैं, अगले साल उसके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे. विल यू हैव बीन वर्किंग, मतलब तुम काम कर रहे होगे, तुम्हारी काम करने की एक्टिविटी शुरू होगी. व्हेन आई अराइव, जब मैं आऊं तब. सिंपल है, व्हेन यूज करने के लिए है, बाकी कोई घबराने की या कुछ जरूरत नहीं है. सिंपल ही है, व्हेन ऐसे यूज होता है. और इंट्रोगेटिव दिखाने के लिए है कि विल आगे लिया, यू बाद में लिया. ही वांट, विल के पीछे ही नॉट लगेगा तो विल का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है वांट. 8th सेंटेंस, ही वांट हैव बीन स्टडीइंग लॉन्ग इनफ टू क्वालिफाई. टू क्वालिफाई मतलब सिलेक्ट होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए वो ज्यादा स्टडी नहीं कर रहा होगा. इनफ मतलब ज्यादा, जरूरी. 9th सेंटेंस, व्हाट विल यू, व्हाट देखिए कहाँ कैसे यूज होता है, नॉर्मल जैसे यूज होता है वैसे ही है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ व्हाट को आगे लिया है. व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस इवनिंग टुमारो, मतलब कल शाम तक तुम क्या कर रहे होंगे, कल शाम तक, टुमारो इवनिंग. ओके, सो इतने ही सेंटेंस है. दूसरा चीज ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे इतना ज्यादा फोकस मैंने कम सेंटेंस या फिर इसीलिए रखा है कि बहुत यूज नहीं होता है ये, रेयरली, या फिर आपको उसका इस्तेमाल कम है. लेकिन हमारे दिमाग को, हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, हमारी ब्रेन की एक एक्सरसाइज हो जाए, अगर इसको समझने की हमारे अंदर एबिलिटी आ जाए तो बाकी टेंस हमको इजीली आ जाएंगे. इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस दिया है, इसलिए आपको बार बार फोकस करने को बोला है. अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी. this is not used that much. ये टेंस इतना यूज नहीं होता है, but this doesn't mean that you will take it lightly. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको lightly लेंगे. We will see it very seriously. इसको भी हम very seriously देखेंगे. Okay, so now do you have any question? और जैसे कि आज का रिवीजन का दिन होता है, but हम थोड़ा पीछे थे तो आज हमने ये रखा है. Still we have time. If you have any doubt in any class, मतलब पिछले कोई भी क्लास में, if you have any doubt, you can ask. कोई भी टेंस, कोई भी टॉपिक, whatever you have learned till date, आज तक आपने जो भी सीखा है, if you have any doubt in anything, you can ask. Shakti sir is sad today, you know, because you are not asking. Okay, Vraj is asking to declare the best group. Yes, खुशहाल. सेंटेंस में अपने मतलब रेफरेंस पॉइंट दिया है पीछे for 2 year, for जैसे like in 6 sentence, by next year I will be working here. तो I will be working here तक चल सकता है ये टेंस में without point of. I will be चल सकता है, लेकिन आपने by next year बोला. Sorry, I will have been working here. Yes, I will have been working here for 4 years. Actually आप by यूज करना चाहते हो तो फिर कर सकते हैं, लेकिन by से ज्यादा बेटर है कि ठीक है, चल सकता है, कोई नो इश्यू. अगला साल खत्म होने तक मेरे 4 साल कंप्लीट कर दिए होंगे या फिर 4 साल से काम कर रहा होगा. Okay. No sir, I am saying that without reference point. By next year I will be working here. I will same. कल जो आंसर दिया था वही आंसर दूंगा. रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं है.
अगर सामने वाले को पता है कि आप क्या बात कर रहे हो, सामने वाले के दिमाग में ये है कि आप नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हो, या फिर आप आगे के सेंटेंसेस में उसका जिक्र कर चुके हो, तो आप नहीं भी बोल सकते हो रेफरेंस पॉइंट। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 years। अगर आप पूरा जैसे कि मैं आप कॉन्वर्सेशन क्रिएट करता हूँ कि आप दो लोग बात कर रहे हैं, तो हम कुछ अगले साल की बात करें, मान लीजिए अगले साल के लिए बात करें कि अगले साल कंपनी में ये होने वाला है, ये चेंजेस होने वाले हैं, और आप फिर बातों बातों में ये चीज बोल सकते हैं, यस यार आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 years, मतलब मैं 4 साल हो जाएंगे, राइट। तो अब सामने वाले को पता है कि आप अगले साल की बात कर रहे हैं और आपको भी पता है कि आप अगले साल की बात कर रहे हैं, तो आप नहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार लेना है, अंडरस्टैंडिंग की बात। लेकिन आप एकदम अनजाने से किसी को, आप अनजाने से जगह पहुंच गए या फिर किसी को कुछ पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो, और आप अगर उसको ऐसा बोल दोगे कि मैं यार 4 साल हो जाएंगे मेरे, तो सामने वाला क्या पूछेगा, हाँ भाई 4 साल हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, उसको पता ही नहीं है ना कि कब हो जाएंगे। तो वहां नहीं पता है तो रेफरेंस पॉइंट यूज करना पड़ेगा। ओके, यस कृति 186। हेलो सर। हेलो सर मुझे बियॉन्ड में पता नहीं चल रहा। ओके, सो क्या आपको उसमें नहीं पता चल रहा है? બિયોન્ડ નો આમ ક્યાં કેવી રીતે યુઝ થાય ને એ મને નથી ખબર પડતી. Okay, Jayesh sir, are you there? Yes, yes. Okay, so actually which में I was absent, so I don't know whatever you have learned, because बीच में क्या चला गया, so that's why I'm asking Jayesh sir. Yes Jayesh sir. Yeah. तो बियॉन्ड का मतलब ये होता है सबसे पहले कि हम बोलते हैं कि आ तो मारी क्षमता थी, મારી ક્ષમતામાં નથી, મારી એબિલિટીમાં નથી, એવું આપણે કઈ કહેવું કે આ કામ મારી ક્ષમતાનું નથી, તો ધીસ વર્ક ઇઝ બિયોન્ડ માય એબિલિટી. તો પહેલો તો એ યુઝ થયો. એટ ફાર પોઈન્ટ ઓફ ઓપોઝિટ સાઇડ, એક્ઝેક્ટ મીનિંગ એટ ફાર પોઈન્ટ ઓફ ઓપોઝિટ સાઇડ, બિયોન્ડ નો મતલબ એટલે તમે ક્યારે કહો કે આ કામ મારી ક્ષમતાનું નથી એટલે કે હું કરી શકું એમ નથી, ત્યારે આપણે યુઝ કરી શકીએ ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ માય એબિલિટી. બીજો કે કઈ માઉન્ટેન છે અને પર્વત છે એની પાછળ તમારું કોઈ વિલેજ છે, એટ ફાર સાઇડ ઓફ ઓપોઝિટ સાઇડ, તો ત્યારે કહી શકો માય વિલેજ ઇઝ બિયોન્ડ ધી માઉન્ટેન. એટલે એવું કહીએ કે કોઈ વસ્તુની પાર એમ, એ વસ્તુ હોય તો ભલે એબિલિટી હોય તો ભલે બધું એમ. યસ યસ, it is beyond my ability, it is beyond my imagination. મારા ક્ષમતાઓની પહેલે પાર છે, મારી ઇમેજિનેશનની બીજી બાજુ છે, વસ્તુ હોય તો કહી શકાય એમ, it is beyond the mountain. તેવું જોઈએ છે. કૃતિ, is did you get it? I think. Yes sir. Okay. Yes Mihir 263. सर हमें सभी टेंस की शॉर्ट की मिल सकती है सर? हाँ वो मिल सकती है, लेकिन दिस विल नॉट बी यूजफुल, वो आपको यूजफुल नहीं होगी। ऐसे नहीं तो पूरा टेंस मतलब पता चल जाता है 50% लोगों को। ठीक है, आपको वो सेंटेंस फॉर्मेशन ही चाहिए ना शॉर्ट की, मतलब यस। एंड मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के फ्यूचर टेंस है तो उसके सामने विल ऐसे। गॉट इट, वो मैं समझ गया, ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाएगा। मिहिर, आप सभी टेंस की पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर की है, तो वहां से भी आप सभी टेंस की लिख सकते हो एक बुक में। सभी टेंस की स्लाइड हमने शेयर की है ग्रुप में। यस यस, सभी में सेंटेंस पैटर्न है, तो वहां से आप एक बुक में लिख दीजिए। ओके। Okay, Mihir, can we unmute Mihir, please? 1 minute. Yes, Mihir. Okay, Mihir, why don't you write that कि जयेश ने जैसे बोला, आप वो सारे पीडीएफ से निकाल के ला के दिखाओ, और वो अपने फिर आप किसको, आप ग्रुप B9 में हो?
7. ओके B7 में एक्सीलेंट। तो सतीश के ग्रुप में आप वो बना के वो डालना। सतीश, आर यू देयर? Because I can't. Okay, great. So Satish, please follow up with Mihir. Let him make that. Then you will get somebody like Rakesh or Jayesh to correct it, and let's have that key ready for everybody. I think that's a great suggestion, Mihir. I think we should do it. ओके मैंने एक पीडीएफ मेरे B7 ग्रुप में भेजी थी सभी टेंस की और नहीं, आपको सारी पीडीएफ नहीं भेजनी है। आप एक अपने कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में इसकी की बनाओ जो आप मांग रहे हो, फिर आप B7 ग्रुप में भेजना। सतीश उसको करेक्ट करेंगे अगर जरूरत है, और एक वो उसको दोबारा से करके सबको इंग्लिश क्लब में भेजेंगे। ओके 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 Yes, Prajakta. Can I make one sentence, sir? Yes. Future perfect continuous tense. On Monday morning, I will have been teaching on Zoom platform for 40 minutes. सही है, complete. Thank you, sir. Okay. Anyone else? If there are no more questions, then Satish Chinnadurai had asked that, how do we help participants increase their vocabulary? And I think Rakesh, you also addressed this in the morning. So I'd like to share something if there are no more questions with the participants. Yes, ma'am. Okay, thank you. So कुछ लोगों ने ये पहले भी देखा है, शायद आप सबने भी देखा हो, लेकिन इसको दोबारा देखिए, इट विल बी हेल्पफुल। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। और उर्वशी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी यू आर यूजिंग द गूगल ट्रांसलेटर टू डू योर होमवर्क। तो तुम्हारा होमवर्क भी काफी अच्छा आ रहा है। सो ये सबके लिए दोबारा से मैं बता रही हूँ, प्लीज यूज इट। देयर आर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। And Satish, roll number 14, I'm very happy that the suggestions that we discussed at the breakout homework checking, you are actually implementing. So that is very, very good. Okay, I have to keep my camera turned off because I have connectivity issues today, but let me share this with you. Okay, just give me a moment. Okay, so we learned कि हमारा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Can somebody confirm? Yes. Yes, Vanna. Okay. So ये डिक्शनरी है। Okay, this is the dictionary website. और आज ये दोबारा ग्रुप में भेज दी जाएगी आप सबको। यहाँ पे जाके you can always go and check the meaning of the word that you are looking for. So let's say we are looking for the word design. Okay. So design का pronunciation, you can listen to it here. You can know the meaning of the word design. And of course, जहाँ पे ये use हुआ है sentences. Okay. This should help you increase the meaning of the words. But यहाँ पे अगर आपको word पता हो, तो आप meaning देख सकते हो। एक चीज कहते हैं synonyms. Synonyms मतलब similar words of a word that you choose. Somebody give me a word. Can we unmute Satish? Let Satish give me a word if he. Hello. Any English word? Any English word? Destructive. Okay. So destructive, अगर आप गूगल में जाके ट्रांसलेट करोगे तो यू विल गेट अगेन, यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए उसका लिखा भी है। यू कैन हियर इट फ्रॉम हियर आल्सो, व्हिच इज आल्सो गुड।
And these are the different ways to use. These are synonyms for destructive. And you can keep clicking on them. You can keep understanding their meaning. और फिर devastating का और synonyms हैं. एक टिपिकल वर्ड सेंटेंसेस में आता है शी टेक्स टी. ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं आप चाय ले लीजिए या मैं चाय ले लूंगा. लेकिन टेक इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड. सो यू शुड एक्चुअली, अब क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश सीख ली है, यू शुड यूज द वर्ड ड्रिंक. माई फादर इन लॉ इज ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग. आई टुक अ कप ऑफ टी इज ओके. सो लेट मी ओपन a Word document. ये टिपिकल सेंटेंस आता है. took, taken, takes. You should use drank. My father-in-law drank tea in the morning. My father-in-law drinks tea in the morning. मेरे father-in-law चाय पीते हैं हर रोज सुबह, तब drinks हो जाएगा. मेरे father-in-law ने चाय पी ली है, then it is drank. So please use words जो जिसका सही पे यूसेज हो जाता है. take वगैरह सब जगह नहीं होता है. I take my bag to school. यहाँ पे take use होता है. Okay, can we have some thumbs up or somebody wants to say is this understandable? Okay, संजय जी का thumbs up मेरे स्क्रीन में दिख रहा है. Excellent. तीसरी चीज, okay, so ये डिक्शनरी, बिकॉज वाई आई एम सेइंग गो टू दिस, ये कैम्ब्रिज है. हम सब यूके फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज करते हैं इंडिया में. अभी भी हम यूएस फॉर्म नहीं यूज करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों नहीं सीख सकते हो. तो प्लीज यूज दिस टू गेट द राइट मीनिंग, बिकॉज ये एक ऑथेंटिक सोर्स है. बट अगर आप सिनोनिम्स वगैरह यूज करना चाहते हैं, देन डू इट इन गूगल, लर्न न्यू वर्ड्स, ऐसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी. द थर्ड थिंग, प्लीज यूज द गूगल ट्रांसलेटर. ये B4 ग्रुप में बार बार बोलती रहती हूँ और कुछ लोग यूज कर रहे हैं. यूज द गूगल ट्रांसलेटर टू whatever language. So let's say Gujarati to English. Write it in Gujarati, write it in Hindi. आपके पास खुद एक तरीका है अपने sentences को चेक करने का, और checked sentences को ही होमवर्क में भेजिए. Then सारे coaches के लिए भी फटाफट करेक्ट करना आसान है. Okay, on that, because we are limited time, if anybody has question, they can send it to their respective homework groups. I will close this. Over to you, Rakesh. Thank you for this. Okay, let's share the PPT so that we can share the homework. Okay, so आपको 10 सेंटेंस बनाना है using future perfect continuous tense, and आपको I don't know, शायद इनमें से एक वीडियो दे दिया है ऑलरेडी. अगर नहीं भी दिया है तो 2 वीडियो और 2 स्क्रिप्ट आज आपको मिलेंगे, because tomorrow is Sunday, right? Yes. So आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू नो हाउ टू प्रैक्टिस, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है. तो स्क्रिप्ट है, वीडियो है, बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ना है, उसके में जो नए वर्ड्स है उसको सीखना है. डिक्शनरी मैम ने बताया, वहीं से आप सीख सकते हो क्या मीनिंग है उस वर्ड का, और उसको सुनना है, बार बार सुनना है उस वीडियो को, और फिर प्रैक्टिस करिए. ओके, नेक्स्ट. So the shortest ology, कई टाइप की ओलॉजी आती है ना, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, राइट, फिजियोलॉजी एटसेट्रा. सो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट ओलॉजी है ना, वो ओलॉजी है. उसका मीनिंग है मतलब जो एग्स का स्टडी करता है, उस साइंस को, द साइंटिफिक स्टडी को ओलॉजी बोलते हैं, ओलॉजी. ओके, थैंक यू वेरी मच. Enjoy your Sunday, or practice, practice, practice. Practice makes a man perfect.
and a woman also. Declare the best group. Best group. कौन करेगा? Who will? Yes, Roshan. First, I unmute to you, Roshan. Yes, Roshan. yes, we become what we think. हम जो सोचते हैं with this quotation quote, I want to expand something कि हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं. तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरे दिल से इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए बराबर से, तो वो डेफिनेटली आप सीख ही जाओगे. राइट नाउ बिफोर आई डिक्लेयरिंग द बेस्ट ग्रुप, आई वांट टू acknowledge to B4 group. B4 group is an inspiration for all of us. The way he put their consistency, persistency and dedication towards the learning. तो वो एक चीज ध्यान में रखने लायक है. और can we have image अजय भाई? So this time which group is best? Can we assume? So here the winner is B3 group. So I congratulate to B3 group and special acknowledge to Naina Satasya towards his dedication and follow-up for this group. Thank you so much. And this song is dedication for B3 song, B3 group. So that's it from my side. Keep practicing, keep learning. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, bye bye. Congratulations. Thank you. Bye bye. Bye bye.